ٹھیک ہے. اس کے بعد امر غائب کے سلسلے میں بھی ہم پڑھے تھے. یفعلو یفعلانی کو کس طریقے سے امر بنایا جائے گا. اس کا سمپل طریقہ ہے کہ لام کو جزم دیا جائے اور شروع میں لام امر یعنی لام زیر لی بڑھایا جائے, اور جتنی جگہ نون ہے جمع مؤنث کی نون کو چھوڑ کے سارے کے سارے نون کو ہٹا دیا جائے گا. یہ فعل امر کا اسٹرکچر. اور فعل نہیں کے سلسلے میں بھی یہ بات آئی تھی کہ تفعلو سے فعل بنے گا, اس کے شروع میں لائے نہیں بڑھائیں گے, ہم لا بڑھا دیے اور اخیر میں جزم دے دیے لا تفعل. ٹھیک ہے. غائب اور متکلم کے صیغوں میں بھی ایسی رہیں گا. یفعلو اگر ہے تو اخیر میں جزم لگائیں گے, شروع میں لا بڑھا دیں گے لا یفعل. فعل نہیں اور منفی یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں جزم ہوتا لا تفعل اور اس میں پیش ہوتا لا یفعل لا تفعل. بس یہی فرق ہے منفی میں اور نہیں میں. فعل نہیں اور فعل منفی یہ ہم لوگ کل پرسوں پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے نا. ریوائز بھی ہو گیا, ریویو بھی ہو گیا. اس سلسلے میں کوئی سوال باقی ہے, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھئے. اب یہ منفی اور نہیں کا فرق ذرا تھوڑا سا ایک دفعہ اور بتا دیجیے پلیز. جزاک لا یفعل لا یفعلانی. ٹھیک ہے. یہ منفی ہے, فعل مضارع منفی, اور اس کے اخیر میں اگر جزم آ گیا لا یفعل لا یفعلا نون گرا دیے تو یہ ہوا فعل نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں جزم آتا ہے اور 7 جگہوں سے نون گر جاتا ہے, نون جمع, 2 نون جمع کو چھوڑ کر, اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی. یفعلو یفعلانی جیسا ہے ویسی لا یفعلو لا یفعلانی ہوگا. معنی میں فرق یہاں پہ وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا, یا وہ اس ایک مرد کو نہیں کرنا چاہیے, وہ ایک مرد نہ کرے. یہ دو میں فرق ہے. جزاک اللہ. حرکت کا فرق ہے, حرکت کا فرق ہے, صرف حرکتوں کے فرق سے ہی ہم کو جو ہے الفاظ کی شناخت کرنا ہے. ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بالعموم کسی بھی لفظ کے اخیر میں آیت آ جائے یا تو آ جائے, جیم آ جائے, خف آ جائے, علامات وقف جو بھی ہے نا, وہ علامات وقف اگر آ رہے ہیں اور ان علامات وقف کی بنیاد پہ آخری حرف پہ اگر جزم ہم لگا رہے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. وہ صرف ریڈنگ کا ایک طریقہ ہے, پڑھنے کا ایک طریقہ ہے, تلاوت کا ایک انداز ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے آیت آئی تو آیا, علامات وقف میں سے جن جن پہ رکنا ہے وہ اگر آئے ہیں
تو ان کی بنیاد پہ جزم لگ رہا ہے، ورنہ بائی برتھ یا بناوٹی جو یہ جو اصول قواعد ہم پڑھ رہے ہیں ان اصولوں اور قواعد کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ تجوید اور قراءت کے قواعد کی بنیاد پہ ہے، الفاظ کی بناوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ تو اس کا لحاظ ہم کو رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ لا یفعل ایک لفظ ہے، اس لفظ کے آخر میں آیت آ گئی، تو اب آپ پڑھیں گے یہاں پہ لا یفعل یا لا تفعل، یہاں رہیں گا تفعلو، لیکن آپ پڑھیں گے لا تفعل، زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پہ ہم کیا کریں گے؟ جزم دیں گے، تو یہاں پروناؤنس ہوگا جزم کے ساتھ لیکن حقیقت رہے گی پیش۔ تو اب اس کو ہم نہیں سمجھیں گے، فعل نہیں سمجھیں گے۔ لا تفعلو ہے، پڑھے آپ پڑھتے پڑھتے لا یسأل عما یفعل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے سلسلے میں فرما رہا، یہاں پہ آیت نہیں ہے اگرچہ، لا یسأل عما یفعل، اب لا یسأل عما یفعل یہاں پہ آیت مثال کے طور پہ ہم کو کرنا پڑا، رکے تو آخر میں جزم لگ گیا، ملتوی فعل مضارع ہے، فعل مضارع پہ جزم نہیں آتا، جزم لگ گیا، تو اب یہاں پہ لا سمجھیں گے، اس کو سمجھیں گے یا اس کو سمجھیں گے، کہ کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ یہاں پہ جو جزم لگا وہ آیت کی بنیاد پہ، علامات وقف کے قاعدوں کی بنیاد پہ ہے، یہ بائی برتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال رکھیے آپ لوگ۔ اور کوئی سوال؟ تو لام امر بتا دینا مولانا، اس میں لا الگ ہے، لام امر۔ ہاں، لام امر زیر والا ہوتا، لام زیر لی، ٹھیک ہے؟ لام الف زبر لا، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک منفی کا لا ہے، دوسرا نہیں کا لا ہے۔ لام امر لام زیر لی، یفعلو لیفعل، لیفعل، اب اس کو ملا کے لکھیں گے ہم، تو یہ لام امر ہو گیا، یہ لام امر ہے، لام ساکن ہو جائیں گا، لام ساکن ہو جائیں گا، ہاں لاسٹ کا ساکن ہو جائے گا، اور لام پہ زیر آ جائیں گے، لی۔ جی، شروع کے لام پہ لام امر زیر۔ چلیں آگے بڑھیں۔ جی الحمدللہ، ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہ پورے کے پورے ہم پڑھ لیے۔ تو افعال جتنے ہیں عربی گرامر میں، افعال مینس فعل کی جمع ہے، وربس، ٹینسز جتنے ہیں وہ پورے کے پورے ہم پڑھ لیے، بس بنیادی طور پہ یہی ہے، فعل، یفعل، افعل، نفل، لا تفعل، بس اس سے ہٹ کے مزید کوئی فعل نہیں ہے۔ اسی کی تین صورتیں ہیں، فعل، فعل، فعول، اس کی تین صورتیں ہیں، یفعل، یفعل، یفعل،
इसकी भी 3 सूरतें बनेंगी, इफ़अल, इफ़इल, उफ़उल, इसकी भी 3 सूरतें बनेंगी, ला तफ़अल, ला तफ़इल, ला तफ़उल। ठीक है। उसके बाद मारूफ, मजहूल, फाइल मालूम है तो फ़अला, फाइल मालूम नहीं है तो फ़अला। फाइल मालूम है यफ़अलु, फाइल मालूम नहीं है युफ़अलु। अब यहाँ पे फ़िल मुज़ारे के हिसाब से ही बनेगा ये भी। उसके बाद इन दोनों में काम हुआ तो फ़अला, काम नहीं हुआ तो मा फ़अला। काम हुआ यफ़अलु, काम नहीं हुआ ला युफ़अलु। बस यही है। जितने फ़िल अफ़आल हैं अरबी में जितने अफ़आल हैं वो चाहे 3 हुरूफ से आए, चाहे 4 हुरूफ से आए, चाहे 5 हुरूफ से आए या और जायद, 3 हुरूफ, 4 हुरूफ, 5 हुरूफ या और जायद हुरूफ से फ़ेल माजी बने या फ़ेल मुज़ारे बने, फ़ेल अमर बने या फ़ेल नहीं बने, सबकी सूरतें यही होंगी। एक नया आज शुरू हो रहा, 3 हुरूफ, फ़अला, फ़अला, ठीक है। फ़अला कितने हुरूफ हैं इसमें? 3 है। 3। ए फ़ा अन ऐन ला, ठीक है, 3 हुरूफ हैं। कभी बाज अल्फाज अरबी में 4 हर्फ वाले हैं, 4 हुरूफ वाले, बाज अल्फाज अरबी में 5 हुरूफ वाले हैं और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो 5 से भी जायद हुरूफ के हैं। तो चाहे वो 3 हुरूफ के हों, 4 हुरूफ के हों, 5 हुरूफ के हों या उससे जायद हुरूफ के, कौन सा कितने भी हुरूफ वाला लफ्ज हो, फेले माजी फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, ये जो ला, ला, लू, लत, लता, ये जो आखिर का है स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, उससे जरा बराबर भी नहीं बदलेगा। यफ़अलु फेले मुजारे जो है, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, लू, लानी, लूना, लू, लानी, लना, ये जो स्ट्रक्चर है आखिर का वो एज चीज रहेगा। और शुरू में अलिफ ता या नून, या ता अलिफ नून, ये फेले मुजारे के शुरू में रहेंगे, चाहे वो 3 हर्फ का फेले मुजारे हो, 4 हर्फ का फेले मुजारे हो, 5 हुरूफ का हो या 5 से ज्यादा हुरूफ का हो। उसकी मिसाल मैं बताता हूं आपको। इय्याका नअबुदु, आगे क्या है? व इय्याका नस्तईन। जी, व इय्याका नस्तईनु, व इय्याका नस्तईनु, ठीक है। नाबुदु, हम इबादत करते हैं, तो याबुदु, नाबुदु आ गया ना। यफ़उलु, नफ़उलु, यफ़अलु का लास्ट सेगा है ना नाबुदु। जी जी फ़िल मुज़ारे में जो टेबल है यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, उसका लास्ट वर्ड है ना नाबुदु, नाबुदु। हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। इबादत करते हैं, तो नाबुदु फ़िल मुज़ारे यफ़अलु का लास्ट वर्ड है। इसी तरीके से व इय्याका नस्तईनु, नस्तईनु भी यही है, लास्ट वर्ड है यफ़अलु का, ठीक है। नस्तईनु, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तलब करते हैं। जो लफ्ज उर्दू में हम बोल सकते, तलब मदद के खासगार हैं, जो लफ्ज बोलना है बोल सकते। तो हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो हम मांगते हैं, यही है ना तर्जुमा। जी तो नस्तईनु, जी, इस्तिआनत बोलते देखिए। नस्ताइन में कौन से लेटर्स, रूट लेटर्स कौन से 3 लेटर्स, नून, आइन, वाव, नून, आइन, वाव, नून, नून, जी आउन,
और माहाना यानतें जमा करो बोलते हैं हम, हमारे पास एक वो है ना, बैतुल माल के सिलसिले में माहाना यानतें जमा कीजिए, खुसूसी यानत। तो यानत आइन या नून, आइन वाव नून, असल रूट वर्ड आइन वाव नून है। तो नस्ताइनु, अब इसका फेले माजी अगर निकाले हम तो इस्ताआना, इस्ताआना, ठीक है। तो कितने हुए, अलिफ सीन ता, 3 आइन अलिफ नून, 3 6 हरूफ का है। इसी से फेले मुजारे यस्ताइनु, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि फेल चाहे 3 हर्फ का हो, चाहे 4 हर्फ का हो, चाहे 5 का हो, या 5 से जायद का हो, शक्ल पूरी की पूरी एक ही होगी। अब देखिए आप, इस्ताआना फ़अला, ठीक है। वो वजन कैसा है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना याद रखिए कि इस्ताआना फ़अला, आखिर में जबर आया, जबर आया। यस्ताईनु यफ़अलु, ठीक है। शुरू में या आखिर में पेश, शुरू में या आखिर में पेश, यस्ताईनु। इस तरीके से नस्ताईनु। तो अब ये जितने भी हैं, ये ऐसे जितने भी हैं, एक और सिंपल लफ्ज ले लीजिए। मौलाना शुरू में हम या फे कलीमा और आइन कलीमा और लाम कलीमा, ये 3 कलीमे हैं इसमें, तो आप इसके अंदर ये कैसा ले रहे हैं आप, यस्ताइनु, ये तो मुजारे है ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। ये इसका वजन क्या है वो आपको मैं बताऊंगा आगे। सिर्फ इतना जहन में रखिए कि फ़अला यफ़अलु, ये 3 हर्फ के हों, 4 हर्फ के हों, 5 के हों, या 5 से जायद हरूफ के हों, आखिर का जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम रहता। बस इतना जहन में रखिए। बखिया ये वजन कैसा आता वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आगे। एक और लफ्ज उसी में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा अनअमता, तो अनअमा इसका फेले माजी है अनअमा, ठीक है। फ़अला अनअमा, उसके बाद आप आगे देखिए अनअमा, अनअमा, अनअमू, अनअमत। इस तरीके से आप पूरे 14 बना सकते हैं। अब ये जो 14 आप बना रहे हैं, तो मा मू मत मता ना ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तू ना, ये 6 आखिर में देखिए। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत, आखिर का स्ट्रक्चर सेम है ना। आखिर का देखिए आप, सेम है। साहब ये इस्तिआन में, हाँ साहब ये इस्तिआन में ये अलीफ ज़ेर होने से अमर का सिगा नहीं हो गया है? नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको, छोड़ दीजिए इसको। सिर्फ आखिर का देखिए बोल रहा हूं आपको। अच्छा, आखिर का आप देखिए। आखिर में जो है ना, फ़अला फ़अला लू लत लता, ये जो आखिर के अलामतें हैं, ये अलामतें फेले माजी के सेम रहेंगे। फेले माजी चाहे 3 हर्फ का हो, 4 हर्फ का हो, 5 का हो, 5 से जायद का हो, इसको समझिए आप बस। अब उसके बाद ये क्या है, अलिफ को ज़ेर है, पेश है, जबर है, ये पूरा फिर मैं बताऊंगा आपको। लेकिन लास्ट की जो शक्ल है हमको उससे बहस है, गुफ्तगू है, ठीक है ना। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत,
یہ جو اخیر کا ہے لا لا لو لت انعما انعما انعمو انعمت سیم ہے نہیں ہے. یہ آخر کے حرکتوں کو آخر کے سٹرکچر کو آپ کو دیکھنا ہے شروع کا, پھر وہ میں بتاؤں گا وزن کس کا وزن کیسا بنے گا وہ میں بتاؤں گا آپ کو. انعما پڑھیے آپ لوگ. انعما انعما انعمو انعمت انعمتا انعمنا انعمتا انعمتما انعمتم انعمتی انعمتما انعمتن انعمتو انعمنا. بس سیم آ گیا نا. فعل فعل فعلو فعلت کے اخیر میں جو ہے وہی آ گیا نا. فعل فعل فعلو کے اخیر میں جو ہے وہی آ گیا نا اس کے اخیر میں بھی. جی جی ہاں بس وہی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. تو فعل ماضی ہو فعل امر ہو سوری فعل مضارع ہو چاہے وہ 3 حرف کا ہو چاہے 4 کا ہو 5 کا ہو 5 سے زائد حروف اس کے اندر آئیں اخیر کا جو سٹرکچر ہے وہ سٹرکچر اسی بنیاد پہ ہوگا. ٹھیک ہے جی ایک اور لفظ قرآن کریم میں اجتنبو قول الزور ہے. اجتنبو یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اجتناب کرو. ٹھیک ہے اجتناب کا مطلب پرہیز کرنا بچنا. اجتنبو قول الزور جھوٹی بات سے. قول بات الزور جھوٹ جھوٹی بات سے بچو پرہیز کرو. ٹھیک تو اجتنبا ایک لفظ ہے فعل ماضی ہے. اجتنبا اس میں کتنے حروف ہیں الف جیم تا نون با 5 ہے. ٹھیک ہے انعما اس میں کتنے حروف ہیں الف نون عین میم 4 حروف ہیں. اس میں کتنے ہیں 5 ہیں ہے نا. اس کے بعد فعل کے وزن پہ ہی یہ بھی گردانا جاتا. اجتنبا اجتنبا اجتنبو اجتنبت گردانیے. کوئی ایک پڑھیے. اجتنبا اجتنبا اجتنبو اجتنبت اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا جی اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم اجتنبتی اجتنبتما اجتنبتن اجتنبتو اجتنبنا. جی جزاک اللہ. تو لاسٹ کا سیم ہے نا فعل فعل کا. تو یہی چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی فعل لفظ میں 3 ہو 4 ہو 5 ہو 5 سے زائد ہوں لاسٹ کا سٹرکچر فعل یفعل افعل لا تفعل اسی طریقے سے رہے گا. بس اس کو اتنا ہی سمجھیے. اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو افعال کتنے ہیں کیا ہیں کیسے ہیں کس کا وزن کیسا آتا وہ پورے کے پورے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس طریقے سے آپ حضرات ٹینسز وربس کی 100% آپ حاصل کر لیے. افعال کی 100% پہچان آپ حاصل کر لیے. اوزان سیکھنا ہے ہم کو ایک ایک فعل کا کیا وزن کیا کیا وزن ہے اس کو ہم کو سیکھنا ہے. یہ تو ہے
لیکن فعلا یفعلو افعل لا تفعل یہ جو فعل ہیں ان افعال کے 100% آپ حاصل کر لیے. اب اس میں سے 1% بھی باہر نہیں ہے اس سے. سنگل ورڈ ایک منفرد فعل کوئی ایک منفرد فعل بھی اس کے باہر کا نہیں ہے. جتنے افعال عربی میں بنتے ہیں وہ فعلا یفعلو افعل لا تفعل کے بنیاد پہ بنتے ہیں. اس سے ہٹ کے آپ کو کوئی فعل نہیں بنتا. یہ یاد رکھیے آپ. اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اب مزید افعال کی کوئی قسم نہیں ہے. جتنی بھی قسمیں ہوں گی وہ اسی بنیاد پہ ہوں گی. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں مرکب کی طرف. مرکب مرکب کسے کہتے ہیں بولیے؟ الفاظ مجموعہ. جی الفاظ کا مجموعہ ایک سے مجموعہ. دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب توصیفی مرکب نام. جی 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 مرکب تام ہے. ناقص ناقص. مرکب تام. تام. جی پھر اس مرکب ناقص اور مرکب تام کی دو قسمیں ہم پڑھے. مرکب ناقص کی ایک قسم مرکب اضافی. اضافی ہے اور دوسری قسم مرکب توصیفی. توصیفی. اس کے بعد پھر مرکب تام کی ایک قسم ہم پڑھے جملہ جملے اسمیہ. اسمیہ جملے فعلیہ. ہاں اور دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ. ہاں ان دونوں میں سے جملہ اسمیہ پہ کمپلیٹ گفتگو ہوئی ہماری. جملہ اسمیہ مرکب تام ہے یعنی کمپلیٹ سینٹینس ہے اور ناؤن سے شروع ہونے والا نامنل سینٹینس اسم سے شروع ہونے والا. اور اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. ایک مبتدا اور دوسرا خبر. ٹھیک ہے نا؟ اس سلسلے میں ہم پڑھے مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ. مرکب توصیفی میں موصوف موصوف صفت. صفت. ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر. یہاں تک ہم لوگ پڑھ لیے تھے. اس کے بعد بچا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ پڑھانے کے لیے میں اسی لیے رکا کہ فعل ماضی ہو فعل مضارع ہو فعل امر ہو فعل نہیں ہو ان کی پہچان ہمیں ہونا ہے. الحمدللہ ماضی کے ساتھ ساتھ مضارع اور امر نہیں کی بھی پہچان ہو گئی. جملہ فعلیہ کہتے ہیں وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. سمپل تعریف ہے. جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے؟ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ. جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے؟ جملہ فعلیہ کا جو ایکچوئل اسٹرکچر ہے بناوٹ ہے وہ ہے فعل پلس فاعل پلس مفعول بھی بولتے ہیں اس کو. مفعول ہے. اس کو یاد رکھیے. جملہ فعلیہ جو بنتا اس کا جو اسٹرکچر ہے فعل پلس فاعل پلس مفعول یہ جملہ فعلیہ ہے. آپ پہلے فعل لائیں گے پھر اس کے بعد فاعل لائیں گے اور اس کے بعد مفعول لائیں گے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ
ابھی ہم پڑھے کیا پڑھے؟ فعل کے سلسلے میں پڑھے، نحو پڑھے. تو قرأ فعل ہے، زید القرآن. ہاں قرأ فعل ہے، جی فعل کے وزن پہ ہے، فعل ماضی ہے. اس کے بعد زید پڑھنے، زید نے پڑھا، قرأ فعل پلس فاعل زید. قرأ کا فاعل کون ہے؟ زید ہے. زید. ہاں اس کے بعد کیا پڑھا؟ القرآن. القرآن قرآن پڑھا. تو فعل، فاعل، مفعول بھی، مفعول، یہ تین آگے نا، فعل، فاعل، مفعول. قرأ فعل پلس زید فاعل پلس القرآن مفعول. اب یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ. مولانا یہاں پہ ایسا بھی ہو سمجھ میں سکتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، مولانا زید قرأت القرآن. زید قرأ القرآن ہو سکتا، ضرور ہو سکتا، جملہ لیکن اسمیہ ہو جاتا ہو. زید جب شروع میں آ گیا، جی زید جملہ اسمیہ ہو گیا ہو. القرآن. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جملہ ہے یہ شروع کس سے ہو رہا؟ اسم سے ہو رہا. اسم سے شروع ہو رہا. معنی یہی ہے، اس کے بھی معنی وہی ہے، اس کے بھی معنی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا، یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا. تو اب اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ بولیں گے. اسمیہ بولیں گے. اور یہ فعل سے شروع ہو رہا، اس جملے کو ہم بولیں گے جملہ فعلیہ. مگر معنی جملہ فعلیہ. دونوں سے بھی معنی وہی آ رہے. ہاں معنی سیم ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، معنی سیم کریں گے ہم. زید قرآن پڑھا، زید قرآن پڑھا، لیکن الفاظ کی جو بناوٹ ہے، وہ سے سینٹینس فارمیشن، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. ٹھیک ہے. جی. تو قرأ زید القرآن، تو یہ سمجھ میں آ گیا. اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے. شیخ یہ ایک بات یہ پوچھنا تھا، اس میں جملہ اسمیہ میں جو مبتدا خبر ہے، جملہ فعلیہ میں کیا ہے؟ اس کے اقسام بولیے اس کو، اس کا جو ہے نا، جیسا ہر یہاں پہ بھی وہی آتا، زید مبتدا ہے، جی قرأ فعل ہے، اس کا فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہوتی، اور القرآن مفعول ہے. فعل اس کے اندر کی ضمیر ہوا، فاعل، القرآن مفعول بھی، یہ مل کے خبر، مبتدا خبر، یہ دو مل کے جملہ اسمیہ. یعنی زید اس کو رہنے دیجیے، مبتدا اس ہو کو گیا. پھر بعد میں سمجھاؤں گا پھر کسی مومنٹ. جی اس کو پھر میں سمجھاؤں گا بعد میں، پہلے پھر یہ دوسری طرف مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا، اس کو رہنے دیجیے. جی اچھی بات. اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے. جی اچھی بات، جزاک. لے لیا. اسکرین شاٹ لے لیجیے. جملہ فعلیہ، یہ تو بتا دیا، فعل سے شروع ہونے والا جملہ. اس کی جو ترکیب ہے، فعل پلس فاعل پلس مفعول. ٹھیک ہے، فعل، فاعل، مفعول. اس کے سلسلے میں بنیادی طور پہ دو تین باتیں ذہن میں رکھیے. کبھی کبھی جملہ ایسا بھی ہوتا، فعل پلس مفعول پلس فاعل.
ठीक है। और कभी कभी मफूल को फेल से पहले भी हम ला लेते हैं, मफऊल प्लस फेल प्लस फाइल, ठीक है। इस तरीके से भी कभी कभार आता है। जैसे कुरान करीम में अभी हमें लिखा इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इय्याका ये मफूल है और नअबुदु फेल, उसके अंदर हम जो है वो फाइल है, ठीक है। तो नअबुदु हम इबादत करते हैं, है ना जी। हम इबादत करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो हम है वो हम इसके अंदर मिक्स है। तो दो फेल फाइल एक साथ बोलेंगे आप, फेल फाइल और इया का मफूल है। तो कभी कभार मफूल पहले भी आ जाता, फेल से भी पहले आ जाता, तो मैंने। और जब ये आप सवाल कर सकते कि मुल साहब ये जो है इसम से शुरू हो रहा ना, तो जुमला इसमिया होना ना, लेकिन ये इसम की शक्ल बदल गई, मफूल की शक्ल में आ गया है, मुब्तदा की शक्ल में नहीं है, ये मफूल की शक्ल में है। इसको कैसा भी बनाइए आप, इसको उठा के यहाँ लाइए, इसको उठा के यहाँ ले जाइए, कैसा भी लेके जाइए, ये मफूल ही रहता, मुब्तदा नहीं बन सकता। तो कुछ शक्लें ऐसी होती हैं, वो आगे पढ़ते पढ़ते समझ में आता। लिहाजा जुमला फेलिया, सेंटेंस फॉर्मेशन, फेल प्लस फाइल प्लस मफूल, फेल प्लस मफूल प्लस फाइल, कभी कभी मफूल प्लस फेल प्लस फाइल। कुरान करीम में ऐसे बहुत कुछ हमको नजर आते हैं, तो ऐसे बहुत कुछ सेंटेंसेस नजर आते हैं, वहां पे हमको किसी किस्म के कंफ्यूजन का शिकार होने की जरूरत नहीं है जी। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन है। अब उसके बाद दो बातें हमको जहन में रखना है। नंबर एक, फेल। फेल की जो बनावट इसके अंदर आएंगी ये फाइल के हिसाब से आएंगी, फाइल जैसा होगा फेल वैसी हमको लाना होगा। मिसाल के तौर पे फाइल अगर मुजक्कर है तो आपको फेल भी मुजक्कर लाना पड़ेगा, और अगर फाइल मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस लाएंगे आप। मिसाल के तौर पे अभी हम पढ़े क़राअ ज़ैदुन अल कुरआना, ठीक है। क़राअ ज़ैदुन अल कुरआना, ज़ैद क्या है, मुजक्कर है ना जी जी, ज़ैद मुजक्कर है, लिहाजा ज़ैद के हिसाब से क़राअ फेल भी मुजक्कर आया। और अगर ज़ैद की जगह फातिमा है तो ऐसी सूरत में क़राअ फेल यहाँ पे मुअन्नस हाँ क़राअत आएगा, क़राअ क़राउ क़राअत, ठीक है। क़राअ ज़ैदुन क़राअत फातिमतु अल कुरआना। तो इसमें भी आपको मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल रखना होगा, जैसा फाइल वैसा फेल, फाइल मुज़क्कर तो फेल मुज़क्कर, फाइल मुअन्नस तो फेल मुअन्नस, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मारिफा नकरा का कोई वो नहीं है, मारिफा नकरा का कोई शर्त नहीं है। यहाँ पे मारिफा हो नकरा हो कुछ भी हो, उससे फर्क फेल को नहीं पड़ेगा, समझ। मुज़क्कर मुअन्नस सिर्फ इसी का आप ख्याल रखेंगे। और इसी तरीके से फेल या फाइल वाहिद हो मुसन्ना हो जमा हो, उसका भी कोई शर्त नहीं है। फाइल वाहिद हो मुसन्ना हो जमा हो, हर हाल में फेल वाहिद आएगा। मिसाल के तौर पे
एक जैद पढ़ा, खरा आया, खरा जैदुन, जैद भी पढ़ा, व बकरुन, बकर भी पढ़ा, व और कोई नाम बोलिए, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भी पढ़ा। ठीक है, जैद भी पढ़ा, बकर भी पढ़ा, अब्दुल्ला भी पढ़ा। तो अब यहाँ जैद एक वाहिद है, बकर को मिला लिए तो मुसन्ना हो गए, और अब्दुल्ला को भी मिला लिए तो जमा हो गए। तो इस तरीके से एक पढ़ो, दो से जायद पढ़ो, कितने भी लोग हों काम करने वाले, फेल वाहिद आएगा। मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। सिर्फ इसका ही ख्याल आप रखेंगे, मुजक्कर और मुअन्नस का ही ख्याल रखेंगे। बखिया मारिफा नकिरा का कोई यहाँ पे मसला नहीं है, वाहिद मुसन्ना जमा का भी कोई मसला नहीं है। समझ में आ गया? अगर अब्दुल्ला और फातिमा दोनों पढ़े बोल तो क्या बोलना है शेख? कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने वालों खरा आई में बोलेंगे आप जी। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। जो लफ्ज पहले आता उस लफ्ज का ख्याल रखेंगे आप। जिस लफ्ज को आप पहले प्रोनाउंस कर रहे हैं, जी जी, खरा अब्दुल्ला अगर आप पहले बोल रहे हैं तो ऐसी सूरत में खरा पढ़ेंगे आप। पहले फातिमा अगर बोल रहे हैं तो खराअत फातिमा बोलेंगे। अच्छा, यानी क़रा जो लफ्ज अब्दुल्ला व पहले आएगा, फातिमा बोलेंगे, मुज़क्कर, यानी क़रा अब्दुल्ला व हाँ, फातिमा बिल्कुल। बोलेंगे। जी जी बिल्कुल वही बोलेंगे। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अगर मैं ये फातिमा बता पहले रहा ले हूँ कि लिए, मुज़क्कर को अगर पहले आप मुअन्नस को हाँ पहले वही ले बोल लिए रहा हूँ, जो लफ्ज हाँ वही बोल रहा हूँ, जो लफ्ज पहले आएगा उसका हिसाब करेंगे, उसका एतबार करेंगे आप। जज़ाकल्लाह खैर। मुज़क्कर अगर पहले ला रहे हैं, मुज़क्कर पहले ला रहे हैं तो मुज़क्कर सिगा इस्तेमाल कीजिए, मुअन्नस पहले ला रहे हैं तो मुअन्नस सिगा इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, समझ में आ गया ना? खैर। जी, अभी जी। बता रहा हूँ, देखिए आप जी भैया को, क़रा ज़ैदुन व फातिमा। ठीक है, और अगर फातिमा के साथ जैद पढ़ रहा तो क़राअत फातिमा तू व ज़ैदुन, मुअन्नस आएगा। सिंपल है। जिसको आप पहले, हाँ, जिसको आप पहले पेश करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से फेल आप प्रोजेक्ट करेंगे। मुज़क्कर को पहले ला रहे हैं तो फेल मुज़क्कर लाइए, मुअन्नस को पहले ला रहे हैं तो फेल मुअन्नस लाइए। जज़ाकल्लाह खैर। बाद वाला फर्स्ट वाले पे डिपेंड करेगा। जी जी, बाद वाला फर्स्ट वाले पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जी तो जी, ये समझ में आ गया ना? जी जी, वही है। उसके बाद फिर एक और हरकतों का ख्याल जरूरी है। अब यहाँ से हरकतों का ख्याल है, यहाँ से हरकतों का ख्याल ये है कि फाइल है। अब आप सब एक ज़ैदुन एक लफ्ज अगर बोल दिया आप जी, सब ये सवाल ये है कि ये खराब फेल है ना सब, हाँ तो ये फेल जब दो नाम आ रहे वो मुसन्ना क्यों नहीं हो रहा? जैद और फातिमा जब आ रहे। हाँ हाँ, अच्छा सवाल है। मैं वही बोला आपको कि इस सेंटेंस फॉर्मेशन में सिर्फ ये दो चीजों का ही एतबार करना है आपको, मुज़क्कर मुअन्नस, इन दोनों का ही आप ख्याल रखेंगे, बकिया चीजें आजाद हैं। फाइल काम करने वाला अगर मुज़क्कर है तो फेल मुज़क्कर लाएंगे, फाइल मुअन्नस है तो फेल मुअन्नस लाएंगे। सिर्फ ये दो की पाबंदी है, उसके बाद की कोई पाबंदी नहीं है। ये वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा हो। इसी तरीके से मारिफा हो या नकिरा हो, इस सिलसिले में कोई पाबंदी इसमें नहीं है, सिर्फ ये दो की पाबंदी है। तो पाबंदी नहीं है तो
इन तब- दोनों में ही ये पाबंदी नहीं है तो फिर ये इसको मुसन्ना बना के भी पढ़ा जा सकता है। नहीं, गलत हो जाता। उन चीजों में आपको जो है ये इसके पाबंद नहीं है। मौसूफ सिफत में, मौसूफ सिफत में आपको मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा, मारिफा, नकिरा, फिर इसी तरीके से रफा, नसब, जर, इन चीजों में यकसानियत जरूरी है। ये ठीक है ना, 4 बातों में, मुज़क्कर मुअन्नस में, वाहिद मुसन्ना जमा में, मारिफा नकिरा में, रफा नसब जर में, यानी जैसा मौसूफ वैसी सिफत, यहाँ पाबंदी जरूरी है। फिर उसके बाद मुब्तदा खबर में आने के बाद कुछ चीजें कम हो गई। इसमें क्या है? मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद मुसन्ना जमा, सिर्फ इतने ही है। इसमें ये 2 यकसा होंगे, बकिया चीजों की यहाँ पे कोई वो नहीं है। इसी तरीके से फाइल फेल फाइल में, फाइल और फेल में आप क्या देखेंगे? सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस देखेंगे। ये 2 ही। उसके बाद ये मुसन्ना है तो ये मुसन्ना होना नहीं है, ये वाहिद ही रहेगा हमेशा। ये जमा है तो ये जमा होना जरूरी नहीं है, ये हमेशा वाहिद रहेगा। सिर्फ आप ख्याल रखेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस का, फेल हमेशा वाहिद होगा। समझ में आ गया? जी जी, जज़ाकल्लाह। जी साहब। फेल फाइल के ताबे होगा सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस में। फेल फाइल के जैसा सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस में होगा, बकिया चीजों में फेल वाहिद रहेगा। अब ये मुसन्ना आने दीजिए, जमा आने दीजिए, ये हर हाल में वाहिद रहेगा। यानी ऐसा बोल सकते हैं, शेख क़रा तुलबा शेख रुकनुद्दीन अल कुरान बोल के, यानी पूरे तुलबा कुरान पढ़े बोले जैसा। और रुकनुद्दीन, हाँ पूरे तलबा और रुकनुद्दीन सब मिलके पढ़े। खरा ऐसा आएगा पूरों के लिए, खरा अत्तुल्लाब व रुकनुद्दीन अल कुरान। ठीक है, तो अब अत्तुल्लाब प्लूरल है, फिर प्लस रुकनुद्दीन और प्लूरल, उसके बावजूद भी यहाँ पे खरा ही रहेगा, वाहिद ही आएगा। अलबत्ता तुल्लाब मुज़क्कर है, लिहाजा खरा मुज़क्कर आएगा। और अगर तुल्लाब की जगह अत्तालिबात मुअन्नस आ गया तो यहाँ पे आप खरा लगाएंगे। ठीक है जी। चलिए, एक और बात ज़हन में रखना है, ज़ैदुन ये भी इस्म है और अल कुरानु ये भी इस्म है ना। अब आप देखिए यहाँ पे क़रा ज़ैदुन अल कुराना, हरकत बदल गई, क़रा ज़ैदुन अल कुराना, ज़ैदुन अल कुरानु है, लेकिन अब इसको सेंटेंस में ले गए तो ज़ैदुन अल कुराना हुआ। तो ये बात जहन में रखिए कि फाइल काम करने वाला जो होता है वो मरफू होता है। मरफू का मतलब पेश या 2 पेश वाला।
फाइल हमेशा मरफू होता है। आप जिसको काम करने वाला बताना चाहते हैं उस पर पेश लगाएंगे, रफा लगाएंगे, एक पेश या दो पेश। और मफऊल, मफऊल किसको बोलते हैं इससे पहले बताया, जिस पर फेल का असर, फाइल के फेल का असर वाक़ हो। ये मफऊल हमेशा मंसूब होता है। मंसूब मीन्स एक जबर या दो जबर वाला। फाइल और मफूल बिही का फर्क, फाइल और मफूल बिही को समझने के लिए हरकत, सिर्फ हरकत है, समझने। ज़ैदुन, आप फाइल को पेश लगाएंगे और मफूल को जबर लगाएंगे। जिस लफ्ज पर जबर होगा वो मफूल होगा और जिस लफ्ज पर पेश होगा वो फाइल होगा। ये आपको समझना है इसमें जुमला फेलिया में। मफूल भी हमेशा मंसूब होगा, ये लिखना क्या? हमेशा, जी, एवरी टाइम, हमेशा मंसूब होगा। मफूल की पहचान जबर के साथ और फाइल की पहचान पेश के साथ। ठीक है। अब इस जुमले में क़राअ ज़ैदुन अल क़ुरआन में आप कैसा पहचानेंगे कि क़राअ का काम करने वाला कौन और क्या चीज की क़िराअत की जा रही। इसको पहचानने के लिए बस एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि जो क़िराअत कर रहा उसको आप पेश लगाएंगे और जिसकी क़िराअत हो रही उसको आप जबर लगाएंगे। ठीक है। तो ये जबर और पेश यानी रफा और नसब, मरफू और मंसूब, इसी से आप पहचानेंगे। यही आइडेंटिटी है फाइल की और मफूल की। फाइल मरफू होता है और मफूल मंसूब होता है। ये हर हमेशा, कभी मंसूब हो गया कभी मरफू हो गया ऐसा नहीं है। ठीक है। अब देखिए आप, क़राअ अल क़ुरआन ज़ैदुन। ठीक है। क़राअ अल क़ुरआन ज़ैदुन। तो अब यहां पे क्या हुआ, क़राअ फेल हुआ, अल क़ुरआन मफूल हुआ, ज़ैदुन फाइल हुआ। ठीक है। और अगर इत्तेफाक से क़ुरआनु बोल दिए और ज़ैदन बोल दिए तो तर्जुमा होगा क्या, कुरान ज़ैद को पढ़ा, कुरान ज़ैद को पढ़ा, यह तर्जुमा होगा। तो इसका ख्याल आप रखेंगे कि जिस चीज को जो करने वाला है उसको आप पेश लगाएंगे और जो किया जा रहा, जिस पर काम का असर हो रहा, उस पे आप जबर लगाएंगे। ठीक है। एक लफ्ज है ज़राबा, एक लफ्ज है ज़ैदुन। ठीक है। और एक लफ्ज है बकरन। आमतौर पे एक मिसाल दी जाती है, एक देना बोलते, ज़राबा के माने मारा, ज़राबा के माने मारा। तो अब इसमें आप बताइए मारने वाला कौन है, मार खाने वाला कौन है? मार खाने वाला बकरा। ज़ैद मार जी, रहा। ज़ैद मारा बकर को। बकर को।
हाँ, मारने वाला कौन, मार खाने वाला कौन? जैद मारने वाला है, बकरा मार खाने वाला। हाँ, जैद मारने वाला, बकर मार खाने वाला। ठीक है, पहचान सिर्फ यही हरकत है, पहचान सिर्फ यही हरकत है कि इस पे रफा आ गया, इस पे नसब आ गया, इस पे पेश, इस पे जबर। अब बच्चे बच्चे मार लेते। जी, सवाल? कोई सवाल करना है? नहीं क्या बोल जी, क्या बोले? जी शेख आगे बढ़िए, ये कुछ अच्छी बात, ठीक। बच्चे बच्चे मार लेते, ठीक है। अब जो स्कूल टीचर है उनका जो तजुर्बा है वो तजुर्बा, या घर के अंदर भी दोनों तीनों भाया, दो तीन बच्चे रहते, दोनों तीनों मार लिए। उसके बाद जो है दो लोग मार लिए, तीसरा बच्चा आके शिकायत करा माँ को, बाप को या उस्ताद को। मिसाल के तौर पे देखा एक बच्चा जैद बकर को मार रहा, भाग के आ गया, मुल्साफ जराबा जैदुन बकरन, इसकी जगह पे जराबा जैदन बकरुन प्रोनाउंस हो गया। जराबा जैदन बकरुन, ये प्रोनाउंस हो गया। तो क्या होता जब पकड़ के ले लेके दोनों को बोलते? फिर क्या होगा, कई को मारा मियाँ बोल के बकर को, फिर उस्ताद मारते, वाले साहब मारते, अम्मी मारते। यहाँ बेचारा जैद भी मार दिया, फिर मुल्साब के पास भी, टीचर के पास भी, पेरेंट्स के पास भी मार खाया है। डबल जुल्म। क्यों? हरकतों की तब्दीली की बुनियाद पे। ठीक है, तो हरकतों का आप ख्याल रखेंगे, फाइल मरफू होता है और मफूल मंसूब होता है। ठीक है, कुरान करीम में एक आयत है, आयत का एक टुकड़ा है, आसा आदमु रब्बाहु। आसा आदमु रब्बाहु। और इसी तरीके से आजकल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा हर जगह होता है और हर मुदर्रिस, हर मुखर्रिर इस आयत की तिलावत करता है। इज़िब्तला इब्राहिम, उसके बाद क्या है, इज़िब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन, यही है ना। तो इसको निकाल दीजिए आप, इब्तला इब्राहिम रब्बुहु। देखिए एक जगह आसा आदम रब्बाहु है और एक जगह इब्तला इब्राहिम रब्बुहु है। तो पहले जो लफ्ज आ रहा यहाँ पे पेश है और दूसरा रब पे जबर है। यहाँ पहले नाम आ रहा है, इस पे जबर है और दूसरे रब पे पेश है। सेंटेंस फॉर्मेशन सेम है, देखिए फेल, फिर उसके बाद एक इसम, फिर उसके बाद एक इसम, फेल इसम इसम। ठीक है, तो अब इसमें हमको मुतय्यन करना है, ऑटोमेटिक हमको हमारा अपना जहन लड़ा के यहाँ पे किसको क्या हरकत देना वो देना है। इसको मैं मेट देता हूँ। मौलाना आज इस पे इक्तफा कर दें, इसलिए वालेकुम सलाम। जी हाँ हाँ हाँ, ठीक है आ रहा हूँ टाइम नहीं देखा। जी बिल्कुल टाइम नहीं देखा मैं, माजरत के साथ। तो इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मौलाना क्या बोलते हैं, हमको होमवर्क आप जी। भेज दीजिए साहब। हाँ ठीक है, भेज देता हूँ इंशाल्लाह।
चलिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।